Good morning, students. Welcome to the third part of chapter number 4, that is based on the question answers. Students, first of all, I would like to wish wherever you stay safe. That is our first priority. But at the same time, I would like to suggest you that you have got enough time to prove yourself. You can do in whatever manner you want. You can watch the lecture time and again. You can see the question answers, the solutions time and again. It is the better place than classroom. Also in classroom you get a chance to listen one lecture at once only, but here you have got the key. You can watch the lectures time and again. As much time you want, you can watch it. So let us start today the topic, that is question number 7 to the end of the exercise. So let us start question number 8 today, that is match the substances given in column A with those or their uses in column B. Now let us draw two columns. This is column 1 and this is column 2. Now A, B, C, D, E, F are the 6 serials, the numbers that are given. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let me name it column 1. And this one is column 2. In the first column, it is given that gold, iron, aluminium, carbon. Gold, iron, aluminium, carbon, copper and mercury. Copper and mercury. At the same time, on the other end, in column B, it is given thermometer, electric wire, thermometer, electric wire. Third part is wrapping food, jewelry, jewelry. After that, next is machinery and fuel. Fuel. We need to match it. The first thing, that is gold. All of you know कि इन सभी आइटम्स में गोल्ड का केवल यूज किसके लिए होता है? ज्वेलरी के लिए. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होना है ऑप्शन डी यहाँ का. नेक्स्ट है आयरन. आयरन का सबसे ज्यादा यूज जो है वो मशीन्स को बनाने में होता है, इसीलिए इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई. एल्यूमिनियम, हमने क्वेश्चन नंबर 7 जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि व्हाई आर एल्यूमिनियम यूज टू रैप द फूड आइटम्स. तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रैप द फूड आइटम्स. फोर्थ है कार्बन. कार्बन को पढ़ने से पहले हम कॉपर की बात करेंगे. कॉपर का यूज किसमें होता है? तो हम जानते हैं कि कॉपर का मतलब है तांबा, और तांबे से तार बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं. इसीलिए कॉपर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक वायर. कॉपर के लिए बी. और मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में मौजूद होता है, ए. बचा हुआ ऑप्शन क्या है हमारे पास? एफ, जो कि क्या है? फ्यूल के लिए, वो कार्बन होता है. आई होप क्लियर हो गया होगा. गोल्ड ज्वेलरी, आयरन मशीनरी, एल्यूमिनियम रैपिंग फूड, कार्बन फ्यूल, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर, और मरकरी से thermometer. I hope all of you have got it. Now let us talk about, this is question number 8. Now let us talk about question number 9. Question number 9 क्या है हमारा?
क्वेश्चन नंबर 9 है, what happens when पहला, dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. Dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. क्या होगा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर प्लेट पर पोर करेंगे? Cu प्लस H2SO4। अब देखिए बेटा, यहां क्या है कि ये जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे क्या कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज, क्यों नहीं होगा कोई रिएक्शन? क्यों? क्योंकि बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज more reactive than copper. आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? What happens when iron nails are dipped in a copper sulfate solution? क्वेश्चन क्या है? What happens when iron nails are placed in a copper sulfate solution? क्या होगा जब आयरन नेल को हम प्लेस करेंगे? किस में प्लेस करेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हम जानते हैं कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। इसीलिए आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत कॉपर को रिमूव कर देगा। मींस व्हाट? एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it displaces copper from the solution and at the same time the blue color of the solution also fades. क्या होता है बेटा कि जैसे ही हम आयरन की बात करते हैं और आयरन में हम ये कहते हैं कि आयरन नेल्स जो कील होते हैं उनको अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को हटा देता है और साथ ही कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू होता है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? फीका हो जाता है, हल्का पड़ जाता है। अगर इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो Fe प्लस में CuSO4, इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये आयरन है जिसको हम फेरस कहते हैं। ये क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस में Cu, फेरस सल्फेट। प्लस में कॉपर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो जब भी हम बात करेंगे तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए रिमूव कर दिया इसने, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव ना होने की वजह से नहीं रिमूव कर पाया सल्फ्यूरिक एसिड को। आई होप यू हैव गॉट इट।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है क्या कि सलोनी took a piece of burning charcoal and collected the gas in a test tube। सलोनी जो है took a burning charcoal and collected the gas in test tube in test tube। How will you find nature of the gas? गैस पहला पार्ट है इसका। दूसरा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट। राइट द इक्वेशन फॉर इट। अब केमिकल इक्वेशन लिखना है इसके लिए, और उससे पहले क्या है कि हम नेचर कैसे फाइंड करेंगे गैस का। तो पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम क्या कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब था, इसमें हमने मान लो चारकोल लिया, जिसको हम कोयला कहते हैं, वही है कोल। अब चारकोल में सबसे पहले ऐड वाटर टू इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड वाटर टू इट द टेस्ट ट्यूब। ठीक है बेटा, हमने पानी यहां ऐड कर दिया। कवर द टेस्ट ट्यूब। दूसरी प्रोसेस में हमें क्या करना है, कवर द टेस्ट ट्यूब। हमने टेस्ट ट्यूब को कवर कर दिया। उसके बाद शेक कर देना है। शेक मतलब क्या होता है, मिला देना। मिलाते कैसे हैं, टेस्ट ट्यूब के ऊपर कवर के ऊपर हाथ रखा और उसको शेक कर दिया, जैसे हम मेडिसिन को करते हैं पीने से पहले, उसी तरह इसको शेक करेंगे। तीसरे प्रोसेस में क्या करेंगे, शेक द टेस्ट ट्यूब। अब जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, शेक करने के बाद ये एक सॉल्यूशन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में क्या करना है, add litmus paper to the solution। paper to the solution after shaking। शेक करने के बाद हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर उसमें ऐड कर देंगे, लिटमस पेपर को रख देंगे उस सॉल्यूशन में। अब क्या है कि लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू से किस में हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम इसको रखेंगे, चूंकि ये नॉन मेटल की बात हो रही है, कार्बन बर्न कर रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस ब्लू टू रेड which suggests us the gas in test tube is acidic in the test tube is acidic in nature। means what, कि हमें पता है कि जैसे ही लिटमस पेपर ब्लू से रेड होगा तो गैस जो है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का, क्योंकि ब्लू से रेड जब भी चेंज होता है तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एसिडिक। आई होप क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो हम कहेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है इसके लिए, तो हम कहेंगे क्या कि चारकोल था, चारकोल जो है वो कार्बन का फॉर्म होता है, प्लस में ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा, CO2 गैस, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं।
आई होप इट इज क्लियर। तो जो हमारे पास गैस निकल कर आएगा वो कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 11। कि रीटा अपने मदर के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है, वहां वो कुछ ज्वेलरी देती है गोल्ड स्मिथ को, जिसको सुनार कहते हैं, उसको वो देती है साफ करने को। अगले दिन जब वो उसको लेकर लौटती है तो उसमें कुछ वजन में कमी आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताऊं कि जब वो वजन में कमी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड स्मिथ ने उसके हिस्से का सोना रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या कहते हैं कि whenever goldsmith takes something to clean it। अब यहां पर समथिंग का मतलब क्या है? ज्वेलरी। To clean it, he puts it in एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या है बेटा? एक सॉल्यूशन है जो नाइट्रिक एसिड से बनता है, ठीक है, HNO3। अब उस सॉल्यूशन में डालता है तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो डिसॉल्व कर लेता है, कुछ पार्ट जो है ज्वेलरी का वो अपने अंदर डिसॉल्व घोल लेता है। और जब वो घुल जाएगा कुछ पार्ट ज्वेलरी का तो वहां से तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो हम क्या कहेंगे? एज ए रिजल्ट द ज्वेलरी गेट्स डिसॉल्व, द सम पार्ट ऑफ ज्वेलरी गेट्स डिसॉल्व so there is loss in the jewelry। मीन्स व्हाट की ज्वेलरी में लॉस होने का कारण क्या है कि वो जो है एक्वारीजिया में जब गोल्ड स्मिथ ने डाला होगा तो उससे कुछ पार्ट जो है वो उसमें डिसॉल्व हो गया होगा, इसीलिए उसका जो वजन है वो कम हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। मैं इसके साथ एक सीट और अटैच कर दूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।